एक प्रकाश निकला टमटमाता और बाबा जी की छाती के जाके समा गया। क्या हुआ? गुरु तो परमेश्वर है, आत्मा उसकी तो अंश है, और उसमें जाकर का जन्म मंडल मुक गया। पर अपने समझते हैं तो वो कहते हैं गुरु जो है जब मिल जाए ना तो उसका सरोकार बदल जाता है, उसकी बात बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, और उसका बोली बदल जाती है, और उसकी चीज बदल जाता है। फिर क्या सत्संग में गया गया वापस नहीं आता कभी, जब गया नहीं जाते हैं। जिसने गया वो गया। क्या गया? उसकी मन की आदतें गई, उसका व्यवहार पहले का गया, उसका बोलने का तजुर्बा गया, सारा पहले बड़ा गया। और अब क्या होगा? और बाबा जी क्या करते थे? कई कुम्हार सीगा, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਖੋਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੇ ਗਧਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁम्हार ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਗੁਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਾਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਕੁम्हार ਨੇ ਆਦਤ ਪਾਈ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਇਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਿ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਏ ਉਹੀ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦਾ ਘਰ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਐ ਕਿ ਆ ਗਧੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਗਧੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸੱਦ ਲੂਗਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ, ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਡੰਡੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਭੇੜੇ ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਅਨਮੋਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕ ਬਾਹਰ ਖੋਲ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਰੋਸੀ ਪੋਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿੰਦੇ ਦਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਖਿਚੜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਸਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾੜਾਂ ਵੱਜੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੇਵਾ? मैं क्या मैं हुक्म के बगैर नहीं आया। वो हसन लगे, गुरबैन लोग कहते सारी जगह चावल गुड़ सब अपनी अपनी जगह लगा दे और रामलाल वास्ते चाह बनाओ। फिर वो मैंने चाह पियाती, नाले मेरा धीरा ड्राइवर सी। और तो बाद बाबा जी ने कहा रामलाल तेरे घर बाबा जी ने एक सत्संग बख्शिया है। महाराज चरण सिंह ने मैंने आ गल तू कहता सी मैं सत्संग कराऊँ, इस मुंडे दी सी छोटे की दो दी तो मैं टीवी ते कराई, तीसरे दिन मैं कहा तू मेरे घर आप आ। महाराज जी ने कहन लगे ला हुण करा लिया सत्संग। चरण सिंह ने कहा मैं कहा तुसी आखो, मैं तो 2 साल होए जांदे नूं, मैं किवें कवां? ते बाबा जी ने खुद कहा तेरे घर सत्संग बख्शिया परमात्मा ने, पर उत्थे पिछोड़ पै गया। वो फिर नूपगढ़ दिता, मैनूं कहण लगे रामलाल आ सत्संग तेरा है। मैं हृदय नाल शुकराना किया भी गुरु कदे झूठ नहीं बोलता। ते उह तो पहला ही बाबा जी उत्थे दर्शन देण लगे, रावले गए नहीं तां भी उसे तरह ही वो दर्शन देंदे। फिर उन्होंने कहा जाओ बैठो, 14 बंदे सी,
ਜਾਓ ਭਾਈ ਰਾਵਲੇ ਦਿਆਵਰੇ ਕੀ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਖੇਤੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀ। 2004 'ਚ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 5 ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ 25 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਜਾਣ 1 ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਛੇਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਸਾਂਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਰਾਵਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਖੇਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਤਾਂ ਕਿ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸਬੂਰੀ में ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਸਤਾ ਗਾਂਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਘਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਧਨ ਮੂਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਆਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੂੰ ਸਾਂਭ। ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਆਂ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਆਂ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋਇਓ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਂਭ, ਮੈਂ ਰਕਮਾ ਖਾ ਜਾਗਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਨੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਧਨ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਤਾਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਲਾਫ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਈਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਕੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚਾਪਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਅੰਦਰ, ਇਕਾਈ ਨਾਵ ਉਹ ਐ ਤਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਰੋਬਰ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਐ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਕੜ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਕੜ, ਤੂੰ ਤਾਂ 20 ਤੈਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਨੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਫਿਰ ਚੀਰੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਾ ਲਿਆਨੀਆਂ ਤਾਰ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸੁਧਰ ਜੂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਂਟੇ ਢਾਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਗਾ ਕਿਲੋ ਕੰਡੇ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਕੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਰੁਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ 5 ਜਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, तेरी रोटी तेनू कम देगी, तेरा भजन तेनू कम देगा, किसी का आसान नहीं है। जे कोई अपनो दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सत गावे, अपने हृदय के साथ गाओ, ऐ नहीं। जे कोई अपनी शोभा लोड़े, साधु संगत में होमे छोड़, मैं कहना छोड़ दे, मेरा इया है, मेरा बिया है, मेरा वो है, कोई नाल वाल जाना नहीं, पिछले कर्मों के कारण है तेरा सारा, ऐसे तेन बंध के लिया के आया है, और ये तू फिर लगा रहा है। तो हमें ये संसार से 4 दिन जिंदगी जो गुजारने हैं और इज्जत नाल जाना है, तो साध संगत में होमे छोड़े, जे कोई जन्म मरण ते डरे, तो सारा छोड़ के साध जना की सरणी पड़े। सारा शरण में, शरण में क्या होता है, ये उसको डर लगे ना तो वो हाथ खड़ा देता है, ऐसे लड़ाई होती है ना, जब तक वो लड़ता है
और देख लेता नहीं भी अब हारूंगा, मारनगे, तो वो हाथ खड़े कर देता है ऐसे। वो क्या है कि मैं तेरी शरण, और हथियार डाल दिए। मरता है क्या वो? उसको रोटी मिलती है, पानी मिलती है। चाहे पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हाथ खड़े किए, सबको हिंदुस्तान ने रोटी दी, पानी दी, नहलाया धुलाया, खूब सेवा की। ऐसे ही अगर हाथ खड़े कर लोगे तो गुरु की शरण में जाओगे, साबत बचोगे, सब कुछ मिलेगा, शांति सुख इज्जत मान सब कुछ मिलेगा। और वो ही तुम्हारी कराएगा, ना कि तुम कराने अपने कराने योग्य हैं। सब कुछ गुरु ही करवाता है, मूल में परमात्मा ही है, वो ही सब कुछ करवाता है। छोटा सा शब्द है, सुनो, स्वामी हजूर का है। करो रे कोई सत्संग आज बनाए, करो रे कोई सत्संग आज बनाए। स्वामी हजूर कहते हैं, अपने जीवे की दया पालो, 84 का फेर बचा लो। कहते हैं नाम जपना सिमन करना किसी से आसान नहीं है। अपने जीव ते अपनी आत्मा ते रहम करना है और 84 के गेट तो कढ़ना है, पैना नहीं। इसी तरह कहते करो री कोई सत्संग आज बनाए। ये जुगों जुगों से भटक रहा हूं। ये जिड़ी आत्मा है पन किन्नी बारी राजा बनी, किन्नी बारी कंगाल होई, किन्नी बारी कीड़ा पशु पखेरू सब बनया, और फिर कहता अब की बार मौका मिला है, करो री कोई सत्संग आज बनाए। वो परमात्मा के नाल जुड़न का कोई विशाल वो है सत्संग। क्या ऐसा कोई महात्मा मिले और जेड़ा मेरा परमात्मा नाल विशाल करा दे। जे कोई मिलना रब नू तो लब लै गुरु विचोला। क्या ऐसा कोई महात्मा मिले जो उसके साथ मुझे मिला दे। नर देहि तुम दुर्लभ पाई, आसे अवसर फिर मिले न आए। कहता ये मानस देह है दुर्लभ है, मिलता न बारंबार। हुण अपन जब तक ज्ञान नहीं होगा सिमन नहीं करते। आप कहते मुफ्त से मिल गई, जब सिमन करोगे पर्दा खुलेगा। पर्दा खोल मिलो सतगुर से, आओ लोक दयाला जग में गुरु समाने। जब करेंगे और मिलेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें एक मानस दे कादे वास्ते मिली, क्यों मिली, और गोविंद मिलन की एहो बढ़िया। तो ये मुश्किल है, ऐसे जामे के गुरु मिल जाए और मानस दे कोड़े है, फिर इंतजार किस बात का है। भजन करो और गुरुमुख नाम जपे एक बार में भी इतना प्रेम करो कि जन मन से खत्म हो जाए। किरिया सुत तन दान बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखा। अब देखो अपने पास जमीन है, जायदाद है, कोई और धन है, बच्चे हैं, सूत लड़की है, लड़का है, नारी है, सब कुछ है, और आखिर में आप देखते हो किसने किसका साथ दिया। आपने उनकी बढ़ाई की, लास्ट में क्या हुआ? संभाल हो गई अपनी, हो गई चाह पूरी, हो गई सेवा, फिर क्या हुआ? दुख हो गया। मूल में क्या मिला? दुख। जितना प्यार किया, जितनी संगत की, जितना उनके लिए भागे दौड़े, आखिर में उनका जो लास्ट में नतीजा परिणाम निकला दुख। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर अपने को समझ आई तो अपने माँ बाप की सेवा की। जब अपने माँ बाप रोते रोते गए तो अपने कौन से आशा धरे बैठे हैं अभी अपने बच्चे बड़ा सेवा करेंगे और अपने को फूलों पे रखोगे? नहीं, एक चीज है आपके पास, वो गुरु है और नाम है। अगर सिमरोगे और सिमरने लग गए और सुख मिलेगा तो आपको आके कोई बुढ़ापे में पूछेगा ना, कह ले बापू जी कहीं पानी गिलास ला दे, जा अठू जा। क्यों? कि मेरे सिमरन में खलल मत डाल, तू यहां से चल जा।
और सुख है उसमें, कितना ही दुख है और सिमरन के साथ जुड़ गया तो उसको सुख मिलेगा। देख कितनी कमजोर है, कितनी खराब हो गई है, और सिमरन करेगा तो उसमें बल मिलेगा और सुख मिलेगा और बड़े आराम से अपने जीवन को त्यागेगा। और नहीं जुड़ा तो फिर लोगों को गालियां निकाल गए, ओ मेरे बेटो यहाँ को नहीं कराया, मैं औलाद वास्ते यही करो, ये भज्या फिरया, यहाँ कर तो करा तो जा चलो छुट्टी। तो अभी अपने मन को समझाओ और सिमरन में लग जाओ। हाँ जी। या से बचो गहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाए। अब भी तुम गुरु की शरण में चल जाओ जब तक आपका शरीर ठीक है। खूब काम करो, खूब घर में खूब खाओ पियो खेलो हंसो, पर अपने मन जो है मन बेचे सतगुरु के पास, मन को गुरु को दे दो। कोई कहता है उस पर ध्यान मत दो, अपने मन को गुरु के साथ जोड़ो। और रहते हुए घर में रहते हुए, परिवार छोड़ने के जो घर में रहते हुए अपने आप आपको महसूस हो जाएगा कि मैं कुछ प्राप्त किया और मेरे का कोई सहारा दे रहा है, कोई बल दे रहा है। अपने आप वो कौन है? तेरा गुरु है। यह सब खेल रन का सपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। कि ये जो आप देख रहे हो, आधी जिंदगी सोते जाती है, आधी दिन में जाती है, थोड़ा सा जीवन है और इसी को अपने इसी में लगा देते हैं, ये मेरा वो मेरा। तो कहते हैं अब तो इधर से सो उधर से जाग। अब देखो अपने खाना खाते हैं और कहते हैं खेल जाऊंगा, गंगानगर जाऊंगा, ये जाऊंगा वो जाऊंगा। उसी जगह को आप पकड़ के गुरु के साथ जोड़ दो। खाना खाओ और जो पहले वहां सोचा वह गुरु को जोड़ दो, गुरु के नाम को जोड़ दो। अब जब आप खाना खाते हो, कई खड़े खड़े खा लेते हैं, कई बैठे खा लेते हैं, कई बातें करते खाते हैं, तो आप वो ही चीज मुंह से नहीं बोलते और यहां से चलती है, यहीं से गुरु को दे दो तो काल कहां बैठेगा? तो काल की बैठक अपने आप निकल जाएगी और गुरु की बातों के साथ जुड़ गया इधर, तो गुरु का जितना स्टोर है ये खुले ग्रंथ, गुरु की बातों का भंडार आपके अंदर खुल जाएगा और दुनिया की चुगली निंदा होमे सब निकल जाएगी वो ऐसा। और गुरु वाली आ जाएगी, ऐसे गुरु जी ऐसे कहते ऐसे कहते, तो आपका मन गुरु के रंग में रंग गया। करो कोशिश, पाओगे जरूर। हाँ जी। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। देखो एक काया झूठी है, माया झूठी है, जो दिखता है सब दिन से, जो दिखे सो दिन से। अपनी शादी होती है, आप एक चीज देखना, कितने फेरे होते हैं? 4। 3 में आगे कौन चलती है? घरवाली। और 1 में कौन चलता है? घरवाला। होता है ना? तो माया का कहां तक भंडार है? ये स्थूल सूक्ष्म कारण 3 लोक तक माया का विस्तार है और 3 लोक को मन ब्रह्मांड लोक को छोड़ के, कारण को छोड़ के ब्रह्मांड में, ऐसे मानो ब्रह्मांड में से मन छोड़ के अंड में आया, अंड से पिंड में जुड़ा। ये स्थूल माया, फिर यह सूक्ष्म और फिर ब्रह्मांड में माया। और जब मन अपना घर छोड़ के इधर आया, मन भी दुखी, माया भी दुखी और झंझट माया के साथ खूब लड़ाई है माया के लिए, और वो किसी बस की रोग नहीं है। अब वो मन वापस भजन करे गुरु का कहने से, तो मन जो है ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश। और कितना भारी है, किस चीज से? यहाँ की चीजें देख देख के बाहर है, वो बाहर लिए बैठा, ये मेरी जायदाद, ये मेरी भूमि, ये मेरे लड़के, ये मेरी घरवाली। और आखिर में अपने बाप को देखो, ले गया सब कुछ, कुछ नहीं दे दिया, सुख अपने कुछ नहीं, क्या बना? जीते का सुख नहीं है, बाद में सब कुछ है। तो बाद में क्या करते हैं?
बाबा को तोड़ो सोको छोड़ो, बाबा ने ठाया सोको छोड़ो ओको छोड़ो, वो तो बाबू जाने किया जिंदगी गुजारी। तो ये जो चीज है जब अपने करेंगे तो आत्मा जो है जब छूटेगी, ये है आसमान, उसे पार से है, ये ब्रह्मांड है, मन भी वहीं से है, आत्मा अंदर से ब्रह्मांड के, और धीरे धीरे नीचे आ गया, इधर इधर सूर्य के साथ उड़ गया। अब ये जाएगा ऊपर तो मन को शांति मिलेगी और आत्मा भी आजाद होगी। जब वो जो आत्मा कहती है ए मन मान वचन तू मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, और लास्ट में कहती है जैसे थे वैसे हो जाए, जैसे थे वैसे हो जाए। क्या मैं तो परमात्मा के अंति में वहां चली जाऊं और तू ब्रह्मा का था, तू ब्रह्म में जाके समा जा, सुख हो जा। झगड़ा कहां से हुआ? एक का व दो का, दोनों से दो हुए फिर अनेक हुए। अब गुरु क्या करता है? गुरु सीमन देता है, अनेकों में से निकालता है। अपने क्या हुए? पहले एक थे, सौखे थे, एक थे ना जब सुखी थे, फिर दो हुए, घरवाली आ गई, फिर कर्म किया, फिर अनेक हो गए, फिर उससे अनेक हो गए, वो छोरी को सुनो, छोरी को पोत को दोस्त को, फिर उधर भागा जा रहा आगे आगे, वही पूरा करना पड़ती। अब अनेक में फंस गया। अब गुरु आया, गुरु कहता सोर साहब में भजन कर। अब भजन किया, फिर दो हुए, कौन? गुरु और चेला। फिर और भजन किया, करता गया, फिर दो से एक हो गया, एक हो गए और अपने घर जाया, बाप पहुंच गया। क्या हुआ? एक में गया, एक ले गया ना, एक हो गया, फिर सुखी हो गया। अब आत्मा भी तो एक होती। लड़की जब अपने माँ बाप के घर थी, काम करती थी क्या? नहीं। उसको गाली निकालते थे माँ बाप? नहीं। उसको कहते थे रंडी फंडी? नहीं। अब दुनिया को देख के, तमाशा देख के वो भी बेचारी फंस गई, शादी हो गई। अब सास आ गई, नंद आ गई, सारा जेठ आ गया, और आ गया। अब बेचारी क्या माऊ मंडवर सोनी बन गई, के करा? अब माऊ के करा? माऊ तो आप फंसे गए पहला। अब वही क्या क्यों तो कुआरो रे तो ठीक हो, पर अब रह जाती है, फंस गयो, अब रह जाओ। अब गुरु का देख भाई, जैसे थे आत्मा का है, आत्मा उसको बोल रही है, वाणी में है कि जैसे थे वैसे हो जाए। भी भजन करे तो जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए, मन अपने दिया रह जाए, आत्मा आजाद हो जाए। और जो भजन पहला करे, जो पहले आजाद हो जाए, वे अपना नाग अपन दर्शन दे, तो परमात्मा सबके साथ है। मैं एक बात बताऊं, हमारे एक डॉक्टर था, वो एक रोटी मुझे खाता था। अब देखो नाम नहीं लिया उसका, वो रोटी मुझे खाता मेरे से 10 किलोमीटर दूर। तो एक दिन उसके मन में आई कि इतने सत्संगी उसके पास जाते हैं, अब की बात नहीं है ये, बात 90 के करीबन की है। तो क्या हुआ, महाराज जी मेरे को आके बोले जिसकी तू रोटी खाता है ना वो तेरा भजन लेगा। तो मैंने सुबह खाना बंद कर दिया। फिर वही परमात्मा उसके मुंह से बोला, रात सोचो तू तो नहीं मुकर गयो। अब देखो क्या बहाने है, क्या सतगुरु सगल भरपूरे, पूरा गुरु सब जगह नहीं होता है, कहीं कमी नहीं होती, चाहे नाम दिया है चाहे ना दिया है, होता सबको देख रहा है वो। तो फिर आप कितने भाग्यशाली हो जिसको नाम मिल गया, और वो पूरे गुरु से। फिर भूली ना गुरां दे उपकार, सज्जना वे तेरी रखिया करे, आंख दे मनावे तेरे दिल नू, कह दे का नाम जपया करे। अरे कुछ तो मोड़ यार, ब्याज ना दे ना दे, मूल तो दे उसका यार, मूल तो देना, जिसने नाम दिया उसका मूल तो दे, ब्याज ना दे ना दे। और बाप की जमीन बधावा ना तो ना बधा, खा तो ना, बिना बेच तो ना, साफ तो ना कर दे यार, ये तो ख्याल कर। बधाना तो रखा। मैं एक बार की बात है, मेरे बाप के पास 2 बीघे जमीन आई, तो मैंने बोला मेरे बाप ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे 2 बीघे जमीन दे गया, पढ़ा गया लिखा गया, सारा काम किया, वो सबकी शादी की, कितना बड़ा मेरा बाप अच्छा था। अब मैं मेरे लड़के को क्या दूंगा? तो पल्ले में तो कुछ था ही नहीं। तो आखिर बाबा जी के पास है, सारा कुछ हुआ। तो एक दिन बाबा जी आगे बेनती की भी कोई बात नहीं, हम तो तेरे बिक गए,
जैसे थे बिके ही रहेंगे जब तक प्राण है। बात हो गई देह में से दिल्ली में, ऐसे दिल्ली में बात हो गई, क्यों भाई पक्के हैं, जब तक हैं पक्के हैं। कह लगे ठीक है फिर मजबूत, मैं बिल्कुल मजबूत। अब मुख फेरे उससे, मुख नहीं फेरा जाता। लोग निंदा करो, चुगली करो, गाली निकालो, मुख नहीं फेरा जाता। वो तो सत्य है, सत्य रहेगा, अंत तक सत्य है, सत्य रहेगा, आगे भी रहेगा, अब भी है, आदि अंत वो ही थे। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने उसके फरियाद की भी, इनका क्या होगा, लोग कहेंगे कि बड़ो महात्मा बड़ो, फिर तो क्यों भाइयों के पास जमीन है। उसने सारा, तुम देखो क्या महान परमात्मा बेधार जग में आया, उसकी सेन कोई बिरला लगता। ऐसा मिलने के बाद ही अपने रह गए, सुधरे नहीं, फिर कब सुधरोगे, फिर मौका नहीं मिलेगा बारी बारी, पता नहीं कहाँ के कहाँ जाएंगे। हाँ जी। सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाए। नव चढ़े चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए। मैंने आपको पहले बताया, गुरु नानक साहब कहते हैं कृपा भई कृपाल की सतगुरु पूरा पाया। जिसको महाराज जी ने, मेरे चरण सिंह जी ने यही कहा, ये पूर्ण गुरु है, सतगुरु सच्चा, सच्चा सत्संग, नाम सच्चा, कितनी कुछ की बढ़ाई की जाए। फिर क्या, उस नाम के शब्द के साथ पहलो ब्रह्मांड में आंख से ऊपर नभ है, इसके ऊपर ही वो आपको दरमंजल और नाम जो 5 है वो ले जाएंगे, मंडलों के नाम है, वो पार कराएंगे। तो ऐसा है कि ऐसे महान गुरु मिलने के बाद, उनसे प्रसाद मिलने के बाद अपने वो खाएं ना, इधर उधर भटकें तो अपना इलाज सही नहीं होगा। अपने उसको खाएं, खूब जपें। तो सब आई संगत को बाबा जी की तरफ बधाइयां हैं, और बेहरा भाई जी को पूरी पूरी श्रद्धांजलि है। बाबा जी अपनी शरण में लें। बच्चों ने जो कुछ काम किया बहुत अच्छा किया। सारी साध संगत को बाबा जी की तरफ बढ़ाई है और बधाई है। ये कोई भाग्यशाली होता है। हमारे एक लड़का था, तो उसके मन में आई मैं यहाँ सत्संग कराऊं। मेरे पास आता था तो उसने सत्संग नहीं कराया। उसके बच्चे को चोट लगी तो बाबा जी गए कि अगर तू सत्संग करा लेता तो ये जो चोट ना लगती। मतलब है, कर्म को कोई आड़े देता है तो सत्संग ही है वो। तब कहते हैं गुरुबिन माला फेरता, गुरुबिन करता दान, गुरुबिन सब निष्फल गयो बुझो वेद कुरान। बाबा जी ने आपने गवाही दी कि अगर वो सत्संग होता तो बाबा जी उसको लेके कर्म को सामने खड़ जाते हैं काल के, भी क्या मांगता है तू श्याम, ये देख। तो कर्म है, कर्म का लेना देना बाबा जी कहते हैं लेके जीते रहा है ना कोई। तो अपने दिल को मजबूत करो, नाम जपो, खूब प्यार से जपो, और अपनी हद में, जबान में, व्यवहार में अपने हद में रह के अपना जीवन व्यतीत करो। और एक सारी ढेरियां ढाओ, एक गुरु की ढेरी रखो, गुरु पे आसरा रखो। वो अब भी आपकी सहायता करेगा, लास्ट में भी करेगा, चोला छोड़ने के भी साथ में होगा आपके, अब भी पहले भी मौजूद है। ऐसा परमात्मा मिलने के बाद कोई कमी नहीं रहती, अपनी तरफ ही कमी होती है। बाबा जी कहते थे या तो गुरु की तरफ कमी होती है या सेवक की तरफ होती है, या तो गुरु नहीं है। अगर गुरु है तो फिर सेवक में कमी है, वो फायदा नहीं उठा रहा। तो चाहिए कि अपने को ये जीवन मिला है और खूब सिमरन करना चाहिए। बाबा जी कहते थे फेरे लेने के बाद रिश्ता हो जाता है ना, फेरे ले लेते हैं, उसके बाद क्या छोरो दारू पिए, छोरो यहाँ करे। तो ये तो पहले देखने की बात है। पहले देखो कि
मेरे को क्या चीज मिलनी चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, तो अपने पहले उसको टकोरिए, पहले खड़काइए, फिर नाम लइए। आप उसकी सत्संग में बैठिए, आपके पास आए, अपना जाहिर करे, आपको प्रकाश दे, आपकी संभाल करे, फिर नाम लो। बेडों की तरह ना जाओ, बेडों की तरह हाँ जी ले लियो नाम, ले लियो नाम, ऐसा नहीं। पहले सत्संग सुनिए, बैठिए, मनन किए, और फिर वो आपके पास नाम देने के पहले वो आपके पास आ जाए और अंदर दिखाए कुछ, अपना जाहिर करे कि मैं उस गुरु का हूं, फिर नाम लीजिए। पहले खूब सत्संग सुनिए ध्यान से, और फिर जब आपके साथ टकराव हो जाए, आप नहीं जाहिर कर सकते, गुरु है तो वो जाहिर करेगा कि भाई हाँ क्या कर रहा है तू, ले लेना, आएगा आपके पास, फिर लेना। तो ऐसा है कि सबको जाइए, जिन्होंने नाम लिया है प्यार से सिमरन करो। और मैं तो ऐसा भाई, एक बाबा जी का कहा ना कबीर ने, कबीरा कुत्ता राम का, मोतियो मेरो नाम, गले हमारे जेवरी, जित खींचे तित जाम। अब मैं कह दूं, कोई मुझे कह भी सत्संग करना हो, मगर मैं कह दूं नहीं जाऊं तो मेरे अंदर मैं खड़ी है। मैं ऐसा ही कहता हूं, मेरे गुरु ने उसके अंदर जाके प्रेरणा दी है। और तेने आपका थोड़ा गुरु का नाम जपाना है, तो कुत्ते के गल में जेवड़ी है, जिधर कोई जेवड़ी खिंचाता है वो प्रेरणा देता है, वो मुझे बुलाता है, मैं चलाता हूं। आप फिर बुलाओगे, फिर आ जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम नहीं छोड़ोगे, छोड़ूंगा मैं भी नहीं, आपको दिखा के छोड़ूंगा। अब की बार मुझे टाइम नहीं है, और फिर कब बुलाओगे तो आपको आंख मिचा के बिठा के, और किसी को 10 चार को दिखा के छोड़ूंगा, भी है ना वो। तो आई संगत को बधाइयां हैं, आपने आदर मान किया, प्रेम दिया, मैं उसका आभारी। राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत अगे बेनती है कि सारी संगत प्रसाद लेके जाना जी। सारी संगत में प्रसाद मिलेगा जी। लंगर भी तैयार है संगत अगे, बेनती के लंगर छक के जाना। सारी संगत अगे बेनती है, सारी संगत ने लंगर छकना है और प्रसाद लेके जाना है। कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए। कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कारण कर
तार रही कृपा तार रही कारण करण करी कृपा तार रही कृपा तार रही कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई नावे तीरथ कोई घाट जाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए कोई नावे तीरथ कोई घाट जाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई पढ़े